Good morning, student. Today we are going to see the part 2 of lesson number 17, that is Introduction to Biotechnology. And in this part, in previous lesson we have seen, in previous lecture we have seen the animal tissues, the types of animal tissues. The epithelial tissue, that was the first type of animal tissue. These epithelial tissues are of six types. That is, first is squamous epithelium, stratified epithelium, glandular epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and cuboidal epithelium. Now, the second type of animal tissue we have seen, that is connective tissue. In this connective tissue, we have seen blood, lymph, areolar tissue, adipose tissue, cartilage, bones, tendons, and ligaments. And the third type was muscular tissue. In this, we have seen stratified muscles, non stratified muscle, cardiac muscle. And the fourth type of animal tissue was nervous tissue. And we have seen those four types of animal tissue in previous lecture. Today we are going to see the types of plant tissue, tissue culture, and agritourism or agribusiness. Now, the first question is, what is the main difference between the growth of animals and plants? And why does the growth of plant occur only at a particular part or the specific part of the plant body? So, this is the question for you. So, the plant tissues are of two types. First is meristematic tissues and the second one is Sir, permanent tissues. sir, plant, sir, आपने बोला ना ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन स्पेसिफिक पार्ट, हाँ, yes. तो उसी वजह से प्लांट का ग्रोथ एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है. Okay. Now, plants tissue are of two types. First is meristematic tissue and the second one is permanent tissue. Meristematic tissues are again classified into three: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Permanent tissues are of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are again classified into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex permanent tissues are of two types: xylem and phloem. The first topic is meristematic tissues. As the meristematic tissues is present is in specific parts of the plant, the growth occurs in those parts only. And these cells of meristematic tissues contain first thick cytoplasm, the conspicuous nucleus, and the thin cell wall, and they are packed. Vacuoles are absent in these cells. Meristematic tissue में vacuoles नहीं रहते. Now, the cells in meristematic tissue are highly active, and the main function of this meristematic tissue is plant growth. प्लांट का ग्रोथ करना वही उनका एक फंक्शन रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप एज वी हैव सीन. द फर्स्ट इज apical meristem. You can see the picture at the tip. एवरी प्लांट, हर प्लांट के टिप में ये अपाइकल मेरिस्टेम रहते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम टाइप्स रहते हैं. एट द टिप ऑफ द रूट, एट द टिप ऑफ द स्टेम, रूट के टिप में या तो फिर स्टेम के टिप में ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे. और इनका काम ही है, इनका काम है कि स्टेम का या रूट का जो लेंथ है वो बढ़ाना, वो इंक्रीज करना. सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम.
Now the second type is intercalary meristem. Itself, the word itself, intercalary itself, is showing at the base of the petiole of the leaves and of the branches. ये जो ब्रांचेस के एंड में या फिर लीफ के पिटियोल में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहेंगे, और ये ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स के इनका फंक्शन जो है कि ब्रांचेस का ग्रोथ करना या और लीफ तैयार करना, फ्लावर्स तैयार होते हैं. एंड थर्ड टाइप इज अ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लैटरली ग्रो करते हैं. सो लैटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम इज इंक्रीज. सो यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे रूट के टिप में या तो फिर स्टेम के टिप में, ये दोनों तरफ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे. मान लो ये शुगर केन है. अभी शुगर केन के यहाँ पे ये नोड है, ये इसको नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको इंटरनोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं. इसके बीच वाला नोड है वो इंटरनोड. हाँ, इंटरनोड. अभी ये नोड पे एक ऐसे आँख की तरह आता है. क्या आता है? ऐसे आँख की तरह यहाँ पे टिश्यू तैयार होता है, और यही टिश्यू हमारे टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल होता है. अभी यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको कट करते हैं और ये ज़मीन में ऐसे आड़ा रखेंगे तो इसमें से नया वाला प्लांट आएगा, नया वाला शुगर केन आएगा. समझे क्या? तो यहाँ पे हाँ, ये जो नोड पे जो टिश्यू तैयार हो रहा है दैट इज इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं, अगर वो काटेंगे ना तो आपको एक ऐसा शेप मिलता है. ट्री कट होने के बाद उसके अंदर आपको इस तरह से दिखाई देता है. कट करने के बाद, हाँ, उसका जो स्टेम है वो कट करने के बाद आपको इस तरह से ऐसे दिखाई देता है. दिखाई देता है कि कभी? हाँ सर. जो थर्ड टाइप है वो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अभी ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे काम करता है कि वो ये जो पहला वाला पोर्शन है, छोटा वाला एरिया, उसमें वो सर्कल्स होते हैं छोटे छोटे. अभी ये धीरे 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 सर्कल बढ़ जाते हैं. ठीक है? तो ये गर्थ बढ़ाता है, उसकी साइज बढ़ाता है, और इस तरह से वो जो स्टेम है वो बड़ा 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 होता जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली हम उस ट्री का मतलब साल क्या बोलते हैं उसको, एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट सर्कल्स. उस सर्कल के ऊपर से हम उसकी एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लेंथ वाइज लैटरली चलते हैं, लैटरली उनका ग्रोथ होता है. और ये तीनों, पहला अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वर्टिकल लेंथ जो है वो बढ़ाता है. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो यहाँ से ब्रांच तैयार करने. अभी यह शुगर केन है, शुगर केन में तो ब्रांचेस नहीं होते क्योंकि वो ग्रास टाइप है, लेकिन जो बाकी के प्लांट है उनके बीच में ब्रांचेस तैयार करना, या तो फिर यहाँ से फ्लावर्स तैयार करना, या तो फिर यहाँ पे ही पत्ता तैयार करना. तो ये काम यहाँ पे जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे. और तीसरा है वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो उसकी लेंथ वाइज क्या बोलते हैं, लैटरली साइज बढ़ाता है, लैटरल साइज बढ़ाता है.